my dear students, welcome back to my YouTube channel. In this detailed video, we are going to discuss the chapter of this book's lifespan development. Let's start it. We have done the physical development in infancy. Now we are going to doing the fifth chapter, which is cognitive development in infancy. You all are well familiar of the term cognitive in infancy. If you are not, then I am going to repeat it. Cognitive is something which is related to the mental activity, mental processes, enhancing your memory, attention, all the processes, decision making comes under your cognitive learning or cognitive development. And infancy is a time period when a child after the birth of the child, then there comes the time period of infancy. So in this chapter we are going to discuss in detail these topics, which are Piaget's theories of infant development, in which we are discussing the summary and evaluation of Piaget's theory, cognitive processes, sensory motor stages, and evaluating Piaget's sensory motor stages. So let's discuss this first section. So this is the Piaget's theories of infant development. You all are well familiar of this theory. I have little bit give you concept in the previous videos. So let's grasp the main concept. So this is cognitive processes, as the Piaget's theory explain the cognitive processes. So we are going to discuss the first term, which is schemes. So what is schemes? How scheme develop? So it is the basic unit of cognition or cognitive processes. Here is the definition of scheme. First I am going to read the definition, then I will explain it later. Schemes. In Piaget's theory, action or mental representation that organize knowledge is called schemes. So as the infant or child seeks to construct an understanding of the world, said Piaget, the developing brain creates schemes. So as I already have stated that to gain the knowledge of this world, schemes are important. What are schemes? The question arises here is that what are schemes and how scheme develops? Are they innate or inherited? So yes, जो schemes हैं वो innate and inherited होती हैं. For example, जो हमारे पास है, जो schemes के अंदर आता है वो ये है. We have constructed an enormous number of diverse schemes ranging from driving a car to balancing a budget to understanding the concept of fairness. So these all 3 points are the example of schemes. What are the term assimilation and accumulation? So I am going to discuss in not detail but brief, because it is considered as a short topic. सो एसिमिलेशन का मतलब आपको इसके जो नाम है उसी से पता चल रहा है कि ये मैंने इक्वेशन भी बना दिया आपकी आसानी के लिए कि एसिमिलेशन के अंदर जो है बच्चे, उनके पास जो स्कीम्स होती हैं ये इनेट है, इनहेरिटेड है, ये रिफ्लेक्स के अंदर शामिल होती है. स्कीम्स जो है ना वो बाय बर्थ बच्चों के अंदर प्रेजेंट होती है. सो जो एसिमिलेशन है उसके अंदर क्या होती है कि स्कीम्स जो है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो डील करती है न्यू एक्सपीरियंस के साथ, कोलैबोरेट करती है, कंबाइन करती है न्यू एक्सपीरियंस के साथ. तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. Assimilation occurs when children use their existing schemes to deal with new information or experience. ये हो गया assimilation. आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्कीम्स होती हैं वो कोलैबोरेट या डील करती हैं न्यू इन्फॉर्मेशंस के साथ, ताकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट हो सके. इसके अंदर जो है वो जो बेस्ट नॉन एग्जांपल है वो ये है कि जो एक बच्चा है, जो इन्फेंट है, जो टोडलर कहलाता है, उसने एक जो जिस गाड़ी में बैठ के वो जाता है उसने उसका नाम सीखा है कार. सो एट द लेवल ऑफ एसिमिलेशन के अंदर वो चीज़ें आएंगी जिसके अंदर वो बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा. बस के अंदर, साइकिल्स के अंदर, डिफरेंट जो कार के ब्रांड के अंदर, वो सबको कहेगा ये सारी जो रोड के ऊपर चल रही है सारी कार है. तो ये एसिमिलेशन में आ जाएगा. जब वो इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा वो उसकी दूसरी टर्म में आएगा जो कि अकोमोडेशन के अंदर है. सो यहाँ पे ये लिखी भी हुई है, आप यहाँ से ये पढ़ भी सकते हैं. यहाँ तक जो है वो हमारे पास एसिमिलेशन की एग्जांपल है. अकोमोडेशन हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. अकोमोडेशन अकर्स व्हेन चिल्ड्रन एडजस्ट देयर स्कीम्स टू टेक न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इनटू अकाउंट.
सो आपको पता चल गया होगा कि अकोमोडेशन का मतलब अकोमोडेट करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो अपनी स्कीम्स को, जो इनेट उसके आइडियाज़ होते हैं, जो उसके इनेट एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनेट रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनको एडजस्ट करता है ताकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन ले सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, क्योंकि एज के साथ डेवलप होती है, तो वो कहेगा कि जो जितनी भी कार्स चल रही हैं वो सिर्फ कार्स ही नहीं है बल्कि उनकी डिफरेंट ब्रांड्स हैं। दे ही इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बस एंड ट्रक। सो यहाँ तक जो है हमारे पास अकोमोडेशन होता है, एंड दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये भी शॉर्ट के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी होता है कि कुछ ग्रुप होना। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास क्या चीज़ें ग्रुप होती है, आइसोलेटेड बिहेवियर्स प्लस जो हमारी थॉट्स होती हैं वो ग्रुप टुगेदर होती है ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए। सो यहाँ पे ये लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन इन पियाजेस थ्योरी इज द ग्रुपिंग ऑफ आइसोलेटेड बिहेवियर एंड थॉट्स इनटू अ हायर ऑर्डर सिस्टम। सो यहाँ पे ये है कि अ बॉय हु हैज़ ओनली अ वेज आइडिया अबाउट हाउ टू यूज़ अ हैमर मे ऑल्सो हैव अ वेज आइडिया अबाउट हाउ टू यूज़ अदर टूल्स। आफ्टर लर्निंग हाउ टू यूज़ ईच वन ही रिलेट्स दीज यूजेस ऑर्गेनाइजिंग इज नॉलेज, ठीक है। ये है। अब जो हमारे पास इक्विलिब्रेशन है, ये भी एक शॉर्ट टर्म है। सो हम यहाँ से, यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोट्स बने हुए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, तो आप वो देखते हैं हम। इक्विलिब्रेशन क्या है? अ मैकेनिज्म दैट पियाजे इज प्रपोज टू एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन शिफ्ट फ्रॉम वन एज ऑफ थॉट टू द नेक्स्ट। अभी आपको पढ़ लिया आपने, अब हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रेशन एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन होना, ठीक है ना। जैसे जैसे आप न्यू इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हो तो आपके अंदर एक इक्विलिब्रियम किस तरह मेंटेन हो रहा होता है, ये हमने देखना है। और उसके अंदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्या रोल है इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रेशन और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर द लिंक्ड, ये हमने चीज़ें सारी देखनी है। अब इक्विलिब्रेशन है कि हम, ये एक मैकेनिज़्म है जो कि पियाजे ने प्रपोज किया था। इसके अंदर ये देखना था, क्योंकि हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। 4 इसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, जिसके अंदर से सेंसरी मोटर फर्स्ट है। सो इसके अंदर क्या है, इक्विलिब्रेशन के अंदर जो है हम ये चीज़ें देखेंगे कि जो हमारे पास, क्योंकि हर एज के अंदर, हर स्टेज के लिए पियाजे ने एक मखसूस एज दी हुई है कि इस एज पे ये वाला प्रोसेस होगा और इस एज पे ये वाला होगा। तो वो इक्विलिब्रेशन ये है कि हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन कैसे शिफ्ट करते हैं एक एज से दूसरी एज पर, और किस तरह उनके जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होते हैं और किस तरह उनका ब्रेन डेवलप होता है, किस तरह वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, किस तरह वो अकोमोडेट और एसिमिलेशन का प्रोसेस से गुजरते हैं। ये सारे इक्विलिब्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। Assimilation and accommodation always take the children to a higher ground according to Piaget। अब मैं ये सारा पढ़ने के बजाय आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो दे देती हूँ कि assimilation और accommodation, जो जैसे मैंने अभी पढ़ा कि ये बच्चों को एक हायर ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए। अब हमारे पास डिस इक्विलिब्रियम स्टेट कब होती है? जब हमारे पास पजल एक क्रिएट होती है, जब हमारे पास डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, तब हमारे पास डिस इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट होती है। जब बच्चे का जो है एक कॉन्सेप्ट बना हुआ, जब वो कॉन्सेप्ट ख़राब होता है, तो फिर हमारे पास डिस इक्विलिब्रियम की स्टेट डेवलप होती है। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, डिस इक्विलिब्रियम व्हेन चाइल्ड एक्सपीरियंस बिकेम रॉन्ग, दिस पजलिंग मोटिवेट द चाइल्ड टू गेन न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू एक्सपीरियंस। और यही जो है वो डिस जो पजलिंग है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, डिस इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, वो चाइल्ड को मोटिवेट करती है कि वो नया कॉन्सेप्ट हासिल करे। जिस तरह हमारे पास एक्यूमुलेशन और एसिमिलेशन के, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के अंदर हमने देखा है कि एसिमिलेशन के अंदर जो है वो चाइल्ड जो अपना जो आइडियाज़ है, जो उसकी स्कीम्स हैं, वो सही रहती हैं, वो उनको सही रखता है। लेकिन जब अकोमोडेशन के अंदर जाता है तो अकोमोडेशन के अंदर वो चेंज कर लेता है। किस तरह चेंज करता है कि वो कार को, जहाँ पे जिस जगह पे वो सारी चीज़ों को कार की तरह कह रहा था, वहाँ पे वो बस और जो हमारे पास दूसरी व्हीकल्स हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाने की हिम्मत रखता है, कर पाने की जस्तजू रखता है, और उसके दिमाग के अंदर वो सारा कुछ होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेंसरी मोटर स्टेज डिस्कस करेंगे, जो कि एक लॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि इसकी जो है हमारे पास फर्दर 6 स्टेजेस हैं, और 6 स्टेजेस के बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट परमेनेंस भी इसी के अंदर कवर कर दें।
और इवेल्युएटिंग ऑफ पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज के बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन कवर हो जाएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे इस चैप्टर के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।